you want to make in English, I'm okay with that. Start. Artificial intelligence. So by this we can we can count on many things. It is machine learning, it is data analysis, it is everything, right? And nowadays it is being used hugely in all and every sector. So the medical field is not an exception to it. And fortunately, uh, charismatically, today we are in the conference of RUHS, being led by Dr. Tarun Lal sir, additional principal, RUHS college, who is working relentlessly along with his team to ensure that AI and AI tools are effectively used in medical healthcare. And we have a great forum wherein we have Dr. Reshu Gupta, who is the associate professor in RUHS, and she is also the part of this team. And now we are going to connect with her to understand more on that part. So Reshu Gupta, ma'am, warm welcome to you on Aapka Raj, Kanun Vyavastha Jar. We can see a very bright face, a bright smile on your face, you know, and see that AI is flourishing like anything. So just want to understand more on it, as how far AI has is helping the medical sector, and what is the substantial contribution that you and your team is giving into it. Please. So AI has been introduced after. So please come. So please come. So AI has been introduced in health sector quite a long ago, but as far as Rajasthan is concerned, we were not able to get it into the system of the healthcare workers of Rajasthan. Especially the students were very inquisitive about what is artificial intelligence, and even for that matter, I think National Medical Council is also working upon it, that they want to include this into the curriculum of the medical students. So it's a very long journey. It will take a long time for that, but as of now, what we had planned is definitely under the guidance of Dr. Sudhir Bhandari sir, Dr. Tarun Lal, Dr. Binod Joshi sir, we planned this workshop to sensitize the faculty members, the postgraduates, and the undergraduate students for the inculcating this artificial intelligence into the system. As it is said, it is a tsunami. It is a tsunami on the horizon. But we have to accept the fact, yes, this has to be there into the healthcare system. And we had all these speakers across the globe. We had speakers from US, we had speakers from Sweden, from Canada. We have dignitaries with us. We have Dr. Katoch, the researcher, the person, the notable academician. We had everybody on this platform to sensitize the students. We had hands-on experience. We gave the students real-time experience of artificial intelligence, how smart this can be, and this you just can't wait to inculcate it into the healthcare system. This is what we are here for. And thank you so very much for being very supportive for the workshop. It's a great pleasure for us to understand more on this part. So, next question that I would like to have here is, yeah. So, in the course of implementing the principles of AI, machine learning, data analysis, you might have witnessed a lot of challenges, a lot of obstacles, right? So if you can describe a couple of them, so that because it is not an easy task, really it is not an easy task. And I know that entire RHS is working relentlessly on that part, in the leadership of Dr. Saab, Sudhirji Bhandari Saab, and Dr. Tarun Lal sir. But yes, the implementation is not at all easy. So any challenge that you have faced with students, or with this concept? There is a lot of resistance still with the acceptance of this fact that artificial intelligence is going to take over a lot of things in healthcare. The only resistance that we had faced was to organize this workshop with the best of the people around, because taking appointments, bringing them onto the same platform, bringing everybody onto the same platform is a tough job. So this was the only challenge we faced. Otherwise, we have n number of people with us. We have a very good team who had worked in and out for last 1 month to execute this problem, to execute this issue. And actually we brought it into this one platform because of a strong team we have. So I can really very well conclude that with a great zeal of the positivity and smile that on your face, you must have been able to do it successfully. And since I was the part of this conference, so I know. So we have one more dignitary with us, who is a very senior person. So I really want him to introduce themselves, and then probably just want to understand more points on what this team is doing, and what is your vision, what you have
taken, and you know what message you want to give this to this team, sir? हिंदी में इंग्लिश में कैसे जी? as as you wish, sir, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जैसे इन्होंने रखी कि इन्होंने बड़ा क्लियर विजन है इनके अंदर कि क्या करना चाहते हैं। प्रोफेसर भंडारी का विजन क्लियर है, प्रोफेसर तरुण लाल का विजन क्लियर है, क्योंकि ये रियल लाइफ इन्होंने एग्जाम्पल सोच रखे हैं कि ये बदलाव लाने हैं। क्योंकि इसकी जो सीमा कोई नहीं है, वो क्लिनिकल केयर इम्प्रूव करेगी, आपकी पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को चेंज करेगी और टोटल हेल्थ केयर चेंज होगी। इसके साथ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर चेंज होंगे, आपके ट्रीटमेंट के मेथड चेंज होंगे और करने का तरीका बदलेगा। तो ये सबसे बड़ा इस वर्कशॉप से जो शुरुआत हो रही है वो ये है कि क्या टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल हो गई, दुनिया कहाँ पे है, क्या करना जरूरी है और कैसे किया जा सकता है। तो उसके रियल लाइफ एग्जांपल ये कोड दिखा रहे हैं जो यहाँ पे इन्होंने इनोवेट किए। जैसे डॉक्टर तरुणलाल जी ने सिस्टम अपने बनाए, आप आज डॉक्टर कामली आई, उन्होंने क्या डेवलप किया कि सर माफी चाहूंगा, बाधा उत्पन्न कर रहा हूं, पर मैं पहले सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को पता पड़े कि आपका नाम जानना चाहूंगा, और उसके बाद में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे लोग कि मतलब थोड़ा सा कि आप अपने बारे में प्लीज बताएं। नहीं, मैं डॉक्टर कटोच हूँ। मैं फॉर्मर डीजी आईसीएमआर और सेक्रेटरी हेल्थ रिसर्च रह चुका हूँ। नासी आईसीएमआर चेयर यूनिवर्सिटी पे ही था। करंटली मैं प्रेसिडेंट हूँ जिपमेर पांडिचेरी का। तो मेरा जो कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोग्राम इन्होंने बिल्ड किया है, इनके गोल बिल्कुल क्लियर हैं। ये राजस्थान की लैंडस्केप, हेल्थ की लैंडस्केप चेंज करने का मेन गोल है, क्योंकि आरयूएचएस का गोल इज अराउंड राजस्थान। दुनिया में भी इनका क्या नाम हो, क्या इमेज हो, कैसे उसमें लिए क्या कंट्रीब्यूट करें, ये भी इनके गोल में शामिल है। तो वो तो आपने सुन लिया और आपने इस वर्कशॉप का हिस्सा है टोटल। अभी जो इमीडिएट गेन जो लोगों को है, वो जो स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट कर रहे हैं, जो जूनियर यंग फैकल्टी प्रेजेंट कर रही है, उनको अपनी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कल मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को एआई टूल से कैसे रेगुलेट कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी अगर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में बैठूंगा। अगर मैं इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करूंगा तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा, मैं क्या चीज़ें इनोवेट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इफ़ आई स्टार्ट यूजिंग द आर्टिफिशियल एआई टूल्स। तो एआई टूल्स से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके रियल लाइफ एग्जांपल ये दिखा रहे हैं लोगों को। अब उससे आगे लोग अपना रास्ता निर्धारित करेंगे कि उनको क्या करना है। वो जब जिस एरिया में होंगे उनको अपने चैलेंज अपने आप दिखेंगे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी साथ में। तो आई थिंक दिस वर्कशॉप पुट्स सो मेनी पीपल ऑन ए पाथ कि आपके ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये नहीं करोगे तो आप नुकसान में रहोगे। तो इट्स दिस वर्कशॉप इज ओपनिंग द आई थिंक द पार्टिसिपेंट्स टू ए वेरी ब्रॉड आई थिंक रोड मैप। यस। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चूंकि आप एक मतलब आपके पास जो अनुभव है बहुत भारी, बहुत बड़ा अनुभव है, और यंग टीम के पास में एआई का विजन है, और मैं समझता हूँ कि ये एक सम्मिश्रण, ये केमिस्ट्री बहुत आगे तक आरिचीज को लेके जाएगी, और मैं समझता हूँ इसमें आपकी ब्लेसिंग्स की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हमारे साथ में एक और डॉक्टर टोटिया सर हैं, सीनियर हैं, और इनके भी विचार हम जानना चाहेंगे एआई के बारे में। और अभी आरयूएचएस में जो नवाचार हो रहा है, आरयूएचएस में जो भी टेक्निक यूज हो रही है हेल्थ केयर को लेकर, और सर ने एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट जो है उसको डिजाइन किया है, पेटेंट करवाया है। मैं चूंकि फील्ड से नहीं, इसलिए मैं नाम भूल जाता हूँ। डॉक्टर सर, मुझे दोबारा से उसका नाम बताइए सर, आपने क्या बनाया है सर? सर, ऑटोमेटिक कार्डियो पुल्मोनरी रिससिटेशन मशीन, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कार्ड सीपीआर मशीन, सीपीआर, सीपीआर 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 सीपीआर। कार्डियो पुल्मोनरी रिससिटेशन मशीन। खास तौर पर बात ये कि सीपीआर मशीन एक बहुत शॉर्ट टाइम है जो कि एक आम आदमी को समझा सकता है, और ये जहाँ जैसा आपने बताया कि ये मशीन ना सिर्फ सिविलियन को काम आ जाएगी, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर भी, जहाँ पर हमारे सैनिक जो हैं वो घायल हो जाते हैं कभी कभार, या कुछ भी उनके साथ मिसहैपनिंग होती है, तो वहाँ पर भी ये काम आ जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तो सर मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके विचार इस बारे में, कटोच सर। एंड डॉक्टर टोटेजा सर, टोटेजा सर, डॉक्टर टोटेजा टोटेजा सर। सर। मैं जी। डॉक्टर टोटेजा हूँ। मैं फॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर हूँ और आईसीएमआर की इंस्टीट्यूट जोधपुर में उसका डायरेक्टर भी रहा हूँ। अभी मैं जो हूँ आईआईटी जोधपुर के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है जोधपुर सिटी नॉलेज इनोवेशन फाउंडेशन, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आईआईटी का भी एक प्रायोरिटी एरिया है। तो ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो आज यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये बेसिकली जो भी सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है यंग फैकल्टी के अंदर, और इसको हमको एक लंबा रास्ता तय करना है। हमारी राय रहेगी कि इसके अंदर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट है और अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो मेडिकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमको करनी चाहिए। आप आईआईटी जोधपुर से हैं, क्या आप चाहेंगे कि आप इनके साथ हर कदम पे रहें? कई बार क्या होता है कि आपस में तालमेल नहीं बैठने से बहुत बड़ी समस्याएं भी रहती है, तो क्या आप चाहेंगे कि आईआईटी जोधपुर, एम्स और सारे संस्थान मिलकर राजस्थान को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएं, जो कि हमारे आदरणीय सीएम साहब का बहुत बड़ा विजन है? मैं यही बता रहा हूँ कि आईआईटी के जो डायरेक्टर साहब हैं उनका लेक्चर भी था यहाँ पर, और जो हमारे यहाँ पर जो काम नागपुर के डॉक्टर साहब में जो काम कर रहे हैं वो आईआईटी जोधपुर के साथ मिलके काम कर रहे हैं, एम्स जोधपुर के साथ मिलके काम कर रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी 1 मार्च को जो राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमने एओआईटी का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंदर जो है भारत सरकार की आईआईटी और राजस्थान सरकार है, जिसमें राजस्थान सरकार जो 70 करोड़ रुपये उन्होंने हमको सैंक्शन किया है 3 साल के लिए, और जो आईआईटी जो 120 करोड़ रुपए इन काइंड में वो दे रही है। 190 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी काफ़ी सेंसर्स वगैरह यूज होंगे, बनाएंगे। वही सेंसर फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो मशीनरी होगी उसके अंदर काम आएंगे। तो हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी हमारा जो काम है जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो आईआईटी जोधपुर और एम्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो क्लस्टर का बनाया गया, इस क्लस्टर का मेन उद्देश्य यही है कि एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि सब इंस्टीट्यूशन जो इकट्ठी हो, उसमें मेडिकल के लोग भी हों, इंजीनियरिंग के लोग भी हों, इंडस्ट्री भी हों, ये सब मिलके जो है वेलफेयर के लिए काम करें। ये जैसा कि बताया गया था कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम लोग जो है करीबन 20% जो है वो सिर्फ अपने यहाँ डिवाइसेस पैदा कर रहे हैं, और बाहर से जो है 80% हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इसको डिवाइसेस के ऊपर हम फोकस करेंगे तो हम काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज को बचाएंगे। जी, जी, बहुत ही शानदार इंसाइट्स दिए हैं डॉक्टर साहब ने। और कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये वर्कशॉप ना सिर्फ़ अनुभवी व्यक्तियों को, बल्कि जो हमारे आने वाले चिकित्सक हैं या जो आज काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही शानदार बेंचमार्क क्रिएट करेगी। और इसी के साथ इस वर्कशॉप पे मैं चाहूँगा कि ऐसी वर्कशॉप्स और आगे ऐसे ही चीज़ें और भी होती रहे, जिससे कि कम से कम आम व्यक्ति को, लेमैन को मेडिकल फील्ड में होते जा रहे नवाचारों के बारे में, एडवांसमेंट्स के बारे में पता चलता रहे। रेशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे मैं थे? ये कहना चाह रही थी, इस वर्कशॉप के एग्जीक्यूशन में बहुत मेहनत लगी है सबकी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पीछे खड़े हैं, जिन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करी है। ये सारे बच्चे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के, इंटर्न तक के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं थोड़ा इनको एक्नॉलेज करना चाहूँगी पर्सनली। दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन दिस, डे इन एंड डे आउट दे हैव बीन वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। दिस इज माई टीम, this is my team. These are all doctors, all MBBS students, and they are future AI users. And in the end, I would like to personally thank Dr. Rishi Gupta ma'am, Dr. Mukesh Gupta sir, Vijender sir for helping out, helping making this success, making this. Our medical students, look at them, so bright and young. They will be the future AI users. I thank you, ma'am. I thank you, Dr. Mukesh sir. I thank Dr. Katot sir, Dr. Toteja sir for helping us make this conference, make this conclave a success. लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट मुझे लगता है कि अगर ये सारी की सारी कॉन्फ्रेंस इन लोगों के नाम की बना अधूरी है, तो ज़रा फटाफट से अपने नाम बता दीजिए, ताकि आप लोगों का योगदान जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। गौरवी चंदेल, तनीषा गोयल, सौम्या मीना, डॉक्टर ऋषिका सारिया, डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर विक्रांत बूथरा, डॉक्टर सुशेन टंडन, सक्षम शाह, अलीना खान, सिमरनजीत कोचर। बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे ये जो युवा डॉक्टर्स हैं, इनके मन में बहुत सारे सपने हैं, और साथ साथ में ये जो अनुभवी टीम है उनका साथ है। तो आज का